Hello, Mr. Nasir Wakarji. How are you today? Who is Nasir ji? So, how was your experience in Wait! Dubai? कोविड का टाइम आपका कैसा रहा? कोविड में मैंने कैमरा, एडिटिंग, डबिंग, साउंड इंजीनियरिंग, लॉजिक प्रो, अकूस्टिक्स, मेकिंग म्यूजिक, म्यूजिक क्रिएशन, ऑल साइड लर्निंग। आज मैं एआई सीख रहा हूँ। आज मैं एआई पे गाने बना रहा हूँ। And people have approached me. How the hell are you making songs on AI? When I got selected for Lion King, but then they had an issue and the rights were not given for the song. So that film got delayed. So I started dubbing for Aladdin. The animation series that came in India of Aladdin, Hindi is my voice for Aladdin. वहाँ पे मुझे काम करके रियलाइज हुआ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है। तो जैसे कहता ना कि पैरों तले जमीन खिसक जाती है, तो मेरे साथ उस बिजनेस में वैसा हुआ और रातों रात सब चीज बर्बाद हो गई। 2007 में आई डिसाइडेड कि अब मुझे और एक्टिंग नहीं करनी। आई एम डन विद इट। Okay, I'll give you some 5 names. You have to give me answer like within a second. Shah Rukh Khan. No, you cannot take this much time immediately. क्या होता है ना, जब आप इमीडिएटली पूछोगे ना तो बादशाह, किंग नहीं निकलेगा। तो वो तो सब जानते हैं ना, आंसर अच्छा होना चाहिए। किसी ने तक बोला नहीं। Salman Khan. Salman is big hearted. Amir Khan. Intelligent. Tamanna Bhatia. She is very attractive. Rakhi Sawant. White. Tamanna Bhatia is white. Rakhi Sawant. Super. DJ Kimi. Very sweet. Correct. Correct? Correct? Thank you. Hi, this is DJ Kimi and you are watching me on X Series Real. So we have a special guest today, Mr. Nasir Wakarji. Hello, Mr. Nasir Wakarji. How are you today? I'm good, Kimi. How are you? Welcome to Dubai. Thank you. Shukran. How are you feeling in Dubai? I'm loving it in Dubai. Dubai is a city of life and fun and good food and friends. तो दुबई आके हमेशा एक एनर्जी आ जाती है, एक एक्साइटमेंट रहती है. So like always, it's always good to be in Dubai. Yeah. Which place you like the most in Dubai? I like all the places. I like even the good fancy restaurants and the street foods because I think this is one of the few cities in the world that caters to everything with good taste everywhere. मुझे खाने पीने का शौक है. Yeah. So I like to eat here and there and everywhere. So you like Arabic food also? I love all kinds of food. All kinds of? Yeah. And more than eating in fancy restaurants, I like to eat outside the road. Outside the road also? Yeah. Oh, that's great. So Did you try Karak chai here in Dubai? नहीं, अगर आप पिलाओगे तो ट्राई करेंगे. मैं पिलाऊंगी, आ जाओ. कौन सी चाय? करक चाय. कड़क है कि कड़क है? करक है, यहाँ पे करक है. यहाँ पे इंडिया में कड़क है, यहाँ पे करक है. हाँ, ठीक है, try. Yeah, try once. कड़क चाय. Yes. So, I want to know about your Bollywood journey. How you started in Bollywood? You didn't Google it. No, I Google it. I know you are Mr. Johnny Walker's son. And I Google it and I watch your all movies and everything. So you know why I'm asking me. I want to know means how you started. See the way it actually जो शुरुआत थी ना, वो ऐसी प्लान नहीं थी. It just happened. I was in America. I was studying over there, which is like in the late 80s, early 90s. Yeah. And then when I came back for a vacation, I got a call from Javed Jafri. Javed Jafri? He was shooting some ad, Iodex का ad था, if I can say the brand name. तो okay. है ना? So which one was? So hear my story. So then he told me. So there was a model who was supposed to come for a shoot. That guy did not show up for whatever reason. तो उसने मुझे बोला कि तू कहाँ है, क्या कर रहा है? I said मैं घर पे हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ. तो इसे मैं एड शूट कर रहा हूँ, अगर तू फ्री है तो मॉडल आ जा. And तो I said मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों करूँ? तो इसे पैसा मिलेगा, कैश मिलेगा. तो ऐसे ठीक है, फिर मैं आता हूँ. अच्छा. हाँ, पैसे के लिए आदमी काम करता है. Of course. So I went over there to shoot for that ad. There were just 2 shots, just a very small thing. I have to hold the Iodex bottle. And Prahlad Kakkar was directing that ad. Yeah. Prahlad is a very big name in the ad world. और उस टाइम तो he was at the top and reigning and कोई भी किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी प्रहलाद कक्कड़ को कुछ बोलने की या
अगर उसने ना बोल दिया तो कोई हाँ नहीं बोलता, अगर उसने हाँ बोल दिया तो कोई ना ना नहीं नहीं बोलता. बोल. तो ही टोल्ड मी कहाँ से हो, क्या करते हो. आई सेड मैं कुछ नहीं करता हूँ. अच्छा. तो बोले व्हाट यू डूइंग नेक्स्ट मंथ. आई सेड नथिंग. सो ही सेड यू आर डूइंग हॉल्स, क्लोजअप एंड पेप्सी विद मी. Mm-hmm. So I said okay. So I shot for halls with him. I shot for Pepsi with him. I shot for Close Up with him. तो Close Up की जो ad थी, that became very very big hit. Yeah. There was Amrita Arora Hmm. in that with me. That was the first time Amrita was on the camera. It was a very youthful, fun college wali ad where we are dancing. It's a stage play, and she says, "Oh Salim, oh Anarkali." Hmm. And I give her the flower and she Wow. says, "Thank you for this Kali," and we laugh. And so I was rejected because they felt that he does not have good teeth. Huh? Teeth. I've got For small, that they rejected. yeah, I've got small teeth. Yeah, yeah. I don't have Uh-huh. big teeth. From this side you have. No, all my teeth very small. I've got baby's Hmm. teeth. Yeah. So this he does not have the teeth for a toothpaste ad. So Mm-hmm. when they rejected me, then they auditioned some more guys. Prahlad rejected them. Then again I did the audition. Again I got rejected. Then again they auditioned some more guys. Mm-hmm. So they auditioned hundreds of boys 100 for that ad. Mm. For boys with the perfect teeth. And Prahlad only said one thing. He said, "I am not casting Nasir for the teeth. I'm casting Nasir for his smile. Yeah. He has a very nice smile. And the smile should be pleasant. Because this boy giving this girl. For the teeth, you have the girl. No? Yeah. She likes the boy because he's cute. He's fumbling and he's trying to make up. So that cuteness should be there and that boyish thing should be there. Yeah. So finally, then I got that ad because of my smile. That's correct. You still have that cute smile. So how was your experience in Wait! Bagban? Wait, अभी तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई है. अच्छा बताओ और हाँ. बताओ. Then I did that and Pepsi का एक ad था, यही है right choice baby. Uh-huh. So that is the first one that I shot. That is how that was launched. And then my halls ad was also good. And then I did a lot of ads with Prahlad Kakkad at that time in the mid 90s. And then once you do an ad with a big name and the ad becomes popular, कोई भी काम अगर आप करते हो किसी के साथ भी शुरुआत में अगर वो आदमी बड़ा होता है और वो हिट होता है Yeah. तो फिर काम की लाइन शुरू हो जाती है. तो मेरे साथ भी वैसा ही कुछ हुआ एंड बहुत सारा काम आने लगा एड वर्ल्ड में. आई बिकेम लाइक द क्यूट बॉय नेक्स्ट डोर, लिटिल फनी, लिटिल क्यूट. And so I did a lot of ads in the 90s. Then I started, but ad में कैसा था? I used to like to go and dub for myself. Uh-huh. I would not like voice models to dub for me. Mm-hmm. Because उस जमाने में हाँ तो चलिए अब क्या बात करेंगे आप, तो वैसे टाइप के थे. Yeah. And whatever ads I had done, they were cute, they were funny. Yeah. They needed a lot of more of real voice expression rather than the baritone of the voice that people require for अरे इसकी आवाज अच्छी है. आवाज अच्छी से कुछ नहीं होता है भाई. Yeah. शक्ल अच्छी से किस्मत अच्छी होनी Kiss चाहिए. was the one. So I used to go and dub my own ads Mm-hmm. because वो था कि ये वो आदमी की आवाज ही भारी आवाज ही सूट नहीं हो रही नासिर के फेस पे. Yeah. तो वहाँ से फिर मुझे डबिंग का सिलसिला शुरू हुआ. When I got selected for Lion King, but then they had an issue and the rights were not given for the song, so that film got delayed. So I started dubbing for Aladdin. So Aladdin जो एनिमेशन आप सब ने जो हिंदी में देखी होगी आपके स्कूल डेज में, तो अलादीन की मेरी आवाज थी. हाँ. Yeah. So the animation series that came in India of Aladdin in Hindi is my voice for Aladdin. Then I did a lot of other movies. जब भी आजकल ये सब DC और मार्वल की फिल्में जो डब होती हैं हिंदी में, तो उस जमाने में I did Braveheart, I did Independence Day, I did a lot of English movies dubbed into Hindi. But उस time पे there weren't that many English films that were coming out, and very few were also dubbed in Hindi. So I did a lot of that dubbing. I then did a lot of dubbing for ads. Yeah. For a lot of, but I never did mimicry. कि इसकी आवाज निकालो, उसकी आवाज निकालो, मुझसे होती नहीं है.
तो then got into dubbing. Then from there it became into music videos. So I started doing out music videos. I did this one music video called Mera Paav Bhari Ho Gaya, which is again a very big hit. I did one with Rageshwari, Pyar Ka Rang. I did one Amy Baby of Amitabh Bachchan songs. Pag Ghumru Bandh Diya Nachi Thi. फिर वहां से टीवी शुरू हो गया कि चलो भाई टीवी सीरियल भी नहीं करते हो. I started getting television. फिर वहां से फिल्में शुरू हो गई. So at that time there was no career goal, there was no motivation, there was no desire, there was no bhook, there was no hunger, there was no passion, there was no कि यार करना है, फाड़ना है, अचीव करना है, नंबर 1 बनना है. बिकॉज मैंने कभी कोई चीज चूज नहीं किया, सब चीजें होती गई कि अरे ये करा तो अब यार डबिंग कर ले, डबिंग करा यार तो मॉडलिंग ही नहीं करता, तो म्यूजिक वीडियोस क्यों नहीं करता, तो टीवी सीरियल क्यों नहीं करता है. तो इससे पहले कि मैं कुछ सोचता कि मैं कहाँ से कहाँ जाके कहाँ पे फोकस करूँ, तो चीजें जस्ट होती गई, मैं काम करता गया. स्ट्रगल अब है, फोकस अब है. यू नो जो 25 साल पहले होना चाहिए था उस एज में तब नहीं था. The work kept on happening. Yeah. And 2007 November 2007 में I decided कि अब मुझे और एक्टिंग नहीं करनी. I am done with it. Why you left? I quit it. I quit it in 2008. And 2008, 9, 10, 11, 12 I got busy with something else. With the US company I was working. So 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14 I did that. I was not in US. I had an office in Goa. I had an office, 2 offices in Gujarat. Dahej करके एक पोर्ट है, वहाँ पे एक ऑफिस था. सूरत में एक ऑफिस था, गोवा में एक ऑफिस था इंजीनियरिंग का, एंड मेन ऑफिस वाज इन अमेरिका इन टेक्सास. So I got busy with that company. I was head of operations for India, in the corporate sector. कोल इंडस्ट्री में था वो. तो मैंने वो किया और उस चीज़ को करके मुझे रियलाइज हुआ कि जैसे लोग बोलते ना कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है. तो वो जो कहते हैं ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, उस बिजनेस में मेरे साथ वैसा हुआ, उस इंडस्ट्री में वैसा हुआ कि रातों रात सब चीज़ तबाह बर्बाद हो गई. तो वो इंडस्ट्री से मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे लोग बोलते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बड़ी अनप्रेडिक्टेबल है. तो वहाँ पे मुझे काम करके रियलाइज हुआ कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, सारी इंडस्ट्री अनप्रेडिक्टेबल है. तो जैसे कहता ना कि पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, तो मेरे साथ उस बिजनेस में वैसा हुआ और रातों रात सब चीज़ बर्बाद हो गई और ख़राब हो गई. यहाँ पे छोड़ा था, यहाँ से पिकअप करेंगे. तो then 2014 I came back to television and to acting. और तब तक सब चीज़ चेंज हो चुका था. 2007 से लेके 2014 तक पूरी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री चेंज हो चुकी थी. लोग बदल चुके थे, काम करने का तरीका बदल चुका था. क्रिएटिव्स आ गए थे, क्रिएटिव डायरेक्टर्स, क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव असिस्टेंट्स. जब मैं काम शुरू किया था और जब मैं काम करता था तो एक प्रोड्यूसर होता था, उसका एक प्रोडक्शन वाला होता था, और एक डायरेक्टर होता था. डायरेक्टर बोलता है मुझे ये चाहिए, प्रोड्यूसर बैठ के आपसे पैसों की बात करता था, और जब बात हो गई है तो प्रोडक्शन वाला सारा शूट संभालता था. अब क्रिएटिव आ गए, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए. क्रिएटिव्स कौन है भाई, अब ये डिसाइड करिए कैसा होगा. कास्टिंग डायरेक्टर्स क्या है, ये कहाँ से आ गए, ये लोग कौन है जो तय करेंगे. मैं ऑडिशन क्या होता है, कभी लाइफ में नहीं दिया था मैंने ऑडिशन. मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 3 फोटो सेशन करवाए हैं. एक डब्बू रत्नानी के साथ, और वो डब्बू का पहला फोटो सेशन था नासिर भाई, बिकॉज डब्बू को मैं जूनियर केजी से जानता हूँ. उसका जो बड़ा भाई है विक्की, जो शेफ है, विक्की मेरे साथ स्कूल में था बॉम्बे स्कॉटिश में. तो डब्बू को मैं जब वो जूनियर केजी से तब से मैं जानता हूँ. तो व्हेन ही वाज असिस्टिंग सुमित चोपड़ा, सो ही सेड कि मुझे तो आप करेंगे क्या मेरे लिए मॉडलिंग, मुझे फोटोग्राफ्स खींचना है. तो मेरा पहला फोटोशूट, मतलब डब्बू का पहला फोटोशूट वाज विद मी. आई डिड दैट. देन आई डिड अंडर सुमित चोपड़ा
एंड आई डिड वन विद अविनाश गोवारिकर जो आशुतोष का भाई है. मैंने उसके बाद से लेके किसी के साथ मैंने कोई फोटोशूट किया नहीं है. नहीं ये किया. फोटोग्राफ्स बिकॉज लाइक आई सेड ना, मैं काम करता गया, मुझे काम मिलता गया, मैं एक चीज से दूसरी चीज में शिफ्ट और ड्रिफ्ट होता गया. Okay. 2007 में जब मैं छोड़ के 2014 में जब मैं आया तब मुझे लगा कि ये क्या है भाई, सब चीज़ बदल गई. देन आई स्टार्टेड डायरेक्टिंग अ फिल्म एंड वो फिल्म कुछ 60-70% कंप्लीट करके फिर प्रोड्यूसर के साथ कुछ डिफरेंसेस हो गए, क्रिएटिव डिफरेंसेस. सो आई क्विट दैट फिल्म. देन 2015 आई केम बैक टू एक्टिंग. 2015 एंड इट वाज ऑल डिफरेंट. बोले नहीं अभी आपको कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास जाना पड़ेगा. मतलब वो क्या होते हैं, क्या होता है, उसका ऑडिशन देना पड़ेगा. व्हाट इज ऑडिशन? फोटो है ऐसे नहीं, फोटो नहीं है. आपने अभी इतना काम किया है ऐसे नहीं, मेरे पास कोई फोटोग्राफ नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है. तो आई वाज लॉस्ट. ये क्या हो रहा है अभी? आई वाज कंप्लीट लॉस्ट कि ये क्या हो गया. एंड ये कौन लोग हैं, नए लोग, नए चेहरे, यंग लोग जिनको कुछ पता नहीं है. एंड यू नो, तो मैं 2000 तो जो बोलते ना कि स्ट्रगल सही मायने में 2015 से शुरू हुआ मेरा. एंड 2016 में 15 में मुझे एक टीवी सीरियल मिला. हमने उसकी जैसे मतलब मुंह बोली शादी सोनी पे आया था, शशि सुमित का शो था, वो शो किया मैंने. और उसमें मेरा कोई इम्पोर्टेंट रोल भी नहीं था. क्या रोल था आपका उसमें? ही इज स्टैंडिंग इन द बैक. चाचा बना है. चाचा. मेरे कोई डायलॉग्स भी नहीं होते थे. जस्ट यू नो I was paid like 3,000 rupees per day for that, which is no money. So ये जो पैसे मिलते थे उसके like 2015 जो पेमेंट मिलता था वो इमीडिएटली दे देते थे कि like नहीं, टाइम लगाते थे? वही प्रोसेस था ना. तो मैं कह रहा हूँ ना कि जब मैंने वो किया एंड when I went for the shoot, तो शूट पे they were like, आप ये रोल कर रहे हो इतने कम पैसे में और आप ऐसा रोल क्यों कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ. I'm lost, I don't know, and I want to work. But if this is the only work, तो मैं करूँगा. Yeah, of course. You know, and I don't know casting directors. Casting directors don't know me. I don't know creators. And ऐसा नहीं है कि I did not know the big producers or the big superstars. सब मेरे पहचान के. Of course you know. सब मेरे दोस्त हैं. पर मैं किसी के पास गया नहीं. Even Salman Bhai, Shah Rukh ji, and all are your friends, right? Childhood friends. Anybody, yeah. I never went to anybody and said कि I need the work. Because I felt कि वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और मेरे लिए भी अच्छा नहीं है कि मैं जाके बोलूँ कि यार कुछ काम है तो काम बताओ. अब अगर नहीं है करने के लिए ना, if I go and tell somebody कि भाई तू ये फिल्म कर रहा है, मुझे कुछ एक रोल दे, तो आप तो ऐसे मांगते हो ना. और अगर नहीं है और या अगर वो नहीं होता है, निकल पाता है, फिर उसमें रिश्ते खराब होता है. यार मैंने एक रोल मांगा, तूने रोल नहीं दिया. You know, so I said इस चीज के लिए मैं रिश्ते क्यों खराब करूं? Of course, yeah. So I did my struggle and it is a learning for me. हो सकता है मुझे काम मिल जाता, हो सकता है मैं 2-3 फिल्में करके फ्लॉप एक्टर बन जाता, फिर कुछ होता ही नहीं. फिर आप कितनी बार लोगों से हेल्प मांगोगे, कितनी बार काम मांगोगे? At least today whatever I did in 2015 से मेरा एक लर्निंग प्रोसेस था कि अच्छा ये मैं कास्टिंग डायरेक्टर्स के नाम लिखता था, नंबर्स लिखता था, जाता था, मिलता था और लोग बोलते थे कि आपने क्या किया है. तो पहले ऐसा था कि क्या किया है, मैं तो इतना सारा काम किया, मैं इतनी सारी फिल्में की हैं, you know. So you didn't feel sad from inside why this is happening, you know? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि it was not sad, it was surprise. Yeah. कि ये क्या है. अब जैसे यहाँ पे आप लोग का एक स्टूडियो है, आपका एक सेटअप है, करेक्ट. आप रोज यहाँ पे आप रोज काम करते हो. अब सडनली आप मंडे मॉर्निंग आ गए और ये पूरा स्टूडियो आपका लाल हो गया. तो आप बोले कि ये क्या हो गया भाई. यू विल नॉट बी सैड, you'll be shocked, you'll be surprised. सैड तब होता है अगर किसी ने आके आपका पूरा स्टूडियो तोड़ दिया. When it is different, you don't feel sad. You feel sad. अरे ये तो इधर कैसा था, अपना तो ना ये नहीं था, अपना तो ब्लैक था, ये तो पूरा लाल हो गया, व्हाइट हो गया, ये कैसे हो गया. वो आफ्टर थॉट चीजें बाद में होती. तो मेरे लिए वैसा था कि ये क्या यार, ये तो ऐसा नहीं था इंडस्ट्री में जब काम कर रहा था. पहले ऐसा नहीं था.
अब कैसे हो गया है? तो अब अगर ऐसे हो गया है तो चलो जाते हैं, मिलते हैं। तो जब मिलता था तो आपने क्या किया है? No. लाइक कि मैंने आशिक फिल्म की है, नहीं मैंने बागबान की है, हाँ हम लोग छोटे थे जब वो पिक्चर आई थी, हाँ मैंने ये कुसुम किया है। अच्छा हाँ सुना है बट हमने देखा नहीं, बिकॉज वो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे वो भी 20-22-25 हाँ साल नई के थे। जनरेशन जो लाइक अभी They were young. yeah So they were not aware of Yeah. the work I had done before. about you Because and they your were young. father, yeah. फादर तो बहुत दूर की बात है, हाँ बिकॉज दे वर वेरी यंग। और मैंने कभी हाँ। डैडी का नाम यूज नहीं किया, ना तब किया ना मतलब ना। जब ना 90s में किया ना 2015 में किया, मैं अब कर रहा हूँ, Mhm. अब डैडी का नाम यूज कर रहा हूँ मैं, उस पे भी You आऊंगा। have to use it. हाँ। He's your father. So when I started meeting people, I said तो ना अब इनको बैठ के एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि आपने क्या किया। मैंने कुछ नहीं किया, Really, you मैं say नया that? हूँ, हाँ मैं नया हूँ, और मैंने उस जोन से फिर काम करना शुरू किया That's good. But कि मैं नया हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे छोटा छोटा काम होता गया, मैं ऑडिशंस करता गया, मैं मिलता गया, अरे आप तो इतना काम कर चुके हैं, आप लाइन में क्यों खड़े हैं, यू नो आपको तो नहीं ऑडिशन करना चाहिए, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो आई सेड नहीं, अगर ये तरीका है आई विल फॉलो। होते होते 2019-20 में कोविड के बिल्कुल पहले आई डिड वन शो कॉल्ड शुभ लाभ, जो सब टीवी पे आया था। तो शुभ लाभ इज द शो दैट गॉट मी बैक एज एन एक्टर, okay. एज अ पर्सन, यू नो एक आपकी एक मेंटल State रहता है वो State हर एक रहता है। आर्टिस्ट को वो रहता है क्या कब होगा, कैसे होगा, कैसे होगा यू नो ये छोटा रोल यहाँ पे एपिसोड है, ये आई एम सेइंग ना, जब मैंने मुंह बोली शादी के, आई वाज गेटिंग पेड ओनली 3000 रुपीस पर डे, हाँ एंड दे यूज्ड टू बी कि आप इतने कम में कैसे काम कर रहे हो। my god अच्छा मुझे काम करना है, मैं पैसा नहीं देख रहा हूँ। और जो लोग थे दे डिड नॉट नो कि मेरी बैकग्राउंड या मेरी हिस्ट्री क्या है, क्या है या यू नो। एंड उसमें मेरे कोई सीन्स नहीं होते थे, मेरे डायलॉग्स में खड़ा रहता था पीछे, आई जस्ट स्टैंड इन द बैक, I had no dialogue, I had no scenes, nothing. It's a very secondary kind of a role that I did. और वो हमने 3 महीने शूटिंग की वो शो की, और वो शो बंद हो गया। वो 6 महीने के बाद एयर पे गया, और 3 महीने में वो बंद हो गया। 3 महीने में बंद हो तो हमने 3 महीने की शूटिंग की, फिर 6 महीने फिर धक्के खाए, फिर वो 6 महीने के बाद एयर पे आया, और 3 महीने के बाद बंद हो गया। सो इट वाज जस्ट होल, बोलते ना, आई विल नॉट से सर्कल, बट इट वाज जीरो ओनली, कि काम भी मिला, पैसे भी नहीं मिले, पैसे और नहीं मिले, मतलब 3000 क्या है, कुछ नहीं है, इट्स तो आने जाने में ही चले जाते हैं, यू नो। एंड ऐसा भी नहीं कुछ सीन था काम करने के लिए, दिखाने के लिए कि मैंने ये काम किया है, एंड वो एयर पे आया भी नहीं और किसी ने देखा भी नहीं। सो इट वाज जस्ट लाइक, यू नो, पुफ, खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास थोड़ा बाहर आना। बहुत बुरा लगता है बट ये सब होता है। नहीं, इट इज लाइक आई एम सेइंग, तो काम कुछ काम होता बड़ा छोटा नहीं होता, काम काम होता है, आपको काम करना चाहिए। एंड देन लाइक आई सेड, शुभ लाभ जो था शो, दैट गिव मी सैटिस्फैक्शन एज एन एक्टर, दैट गिव मी सैटिस्फैक्शन एज अ पर्सन, एज अ नासिर, एंड तो वो मुझे बहुत सैटिस्फैक्शन हुआ कि काम अच्छा है। और फिर उस काम की वजह से चैनल ने बोला कि यार इस कैरेक्टर का रोल और इम्पोर्टेंट करो, इसको और इम्पोर्टेंट सीन्स दो, इसको और एम्फेसिस दो। तो एक फीमेल ओरिएंटेड सेटअप में एक मेल को इतने इम्पोर्टेंट सीन्स मिलना, एपिसोड्स चलाना, फॉर मी वाज अ वेरी वेरी हैप्पी एंड विक्टोरियस फीलिंग कि यस, आई नो आई एम केपेबल ऑफ डूइंग इट, आई नो आई हैव इट, आई नो एंड आई कैन कीप मूविंग अहेड। कि फाइनली जो 2007 में 6 में जो छोड़ा था, अब वो 2019 में 20 में मुझे मिल रहा है। और वो शो में सबसे बड़ी बात ये थी कि जो ये मेरे को एक्टर्स थे, जो मेरी बहू थी, जो मेरा सन इन लॉ था, जो मेरा बेटा था, they were all young. So when I started shooting with them, तो वो सब सोशल मीडिया पर रहते थे। अच्छा।
you know? सोशल मीडिया हाँ, जो सब लोग रहते हैं। रहते हैं यार। तो उनका ये था कि हमको लगा आप सीनियर एक्टर हो, आप एक 50 प्लस के एक्टर हो, हाँ तो हमको लगा आप बहुत स्ट्रिक्ट होंगे, आप चिल्लाएंगे, डांटेंगे, yeah. बट सबसे ज़्यादा मस्ती आप करते हो, सबसे ज़्यादा मस्ती आप करते हो, सबसे ज़्यादा आप टाइम पास करते हो, यू नो, यू ऑलवेज जोकिंग, ऑलवेज लाफिंग, तो व्हाई यू डोंट, आप बनाते क्यों नहीं हो फोटोग्राफ्स? कैसे क्या, मेरे को आता नहीं है। सो दे टॉट मी कि ऐसे रील्स बनती हैं, ऐसे ऑडियो सिलेक्ट होता है, ऐसे करते हैं, ये ऐप डाउनलोड करो तो इस पे एडिट होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। सो आई सैट, फॉर मेरे लिए एज अ नासिर, एज एन एक्टर, एज अ पर्सन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट था टू लर्न दीज थिंग्स, एंड दैट इज द टाइम आई बिकेम ए न्यू कमर, कि सिखाओ मुझे क्या है, आई वांट टू लर्न, यू नो। तो मैं वो इंटेंशन से फिर मैंने सीखना शुरू किया कि अच्छा ऐसा होता है, ऐसे करते हैं, एंड देन वो शो खत्म हुआ, एंड आई डिड हीरा मंडी. Hira Mandi again, a very good working experience with Sanjay Leela Bhansali and Sonakshi and all of them. And now I'm doing another show called Saja Sindhu. एक नया चैनल है सन लियो हिंदी, हम उस पे आता है, वो कर रहा हूँ. बट मेरा कहने का मतलब है कि 2022 से then I got involved in social media and making reels, and from 2023 is when I really got, you know, मेरी रीलें चलने लगी, जो मेरे 800-1200 फॉलोअर्स थे, wow, that's good. वो धीरे धीरे बढ़ने लगे, I know. you know. So I got very involved in that, creating those things. Now I started my own podcast on my YouTube channel, which I started shooting for. So I became very aware of what is going around, and the way I look at it is, जब हमने शुरू किया था तो काम करने का एक सिस्टम था, एक तरीका था. मेरे साथ के जितने भी एक्टर्स हैं, मुझे कितने सारे लोग बोलते हैं कि रील्स क्यों बनाता है, क्यों करता है, यू नो, एंड आई एम लाइक, क्यों करता है मतलब क्या है, इफ दिस इज, सब बनाते हैं, दिस इज एवरीबडी सेज. अभी तो जितने फॉलो, आपके फॉलोअर्स पे डिपेंड करके लोग, यू नो, आपकी इंस्टाग्राम देख के लोग कास्टिंग करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात है? कोई बुरी बात नहीं, सब बनाते हैं आजकल तो. नहीं, आई एम नॉट सेइंग सब बनाते हैं. पहले जब ये चीजें नहीं थी तो लोग ऑफिस के सामने जाके एक्टिंग करके प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स को दिखाते थे, इम्प्रेस करते थे, यू नो. फिर स्टूडियो में लाइव ऑडिशंस होते थे यार. फिर उसके बाद आप स्टूडियो में जाके रिकॉर्डिंग्स होती थी, यस, यू नो. तो चीजें चेंज होती गई. अब अगर ये तरीका है नापने का या काम मिलने का, तो मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों पीछे रहूं? बिकॉज आई नो that I am no less than anybody out there, whatever age bracket they are, and I've learned. So मेरे लिए कोविड बड़ा अच्छा रहा. So कोविड का टाइम आपका कैसा निकला, कैसा रहा? मेरे लिए कोविड बड़ा अच्छा रहा, एज इन मैंने ये देखा कि अगर सब यहाँ पहुँच गए थे 2007 से लेके 20, कब आया था कोविड? 2020 और बोल सकता है कोविड 2020. तो 2006-07 में I was here, then I quit, I became zero, and then I started struggling. 2015, 16, 17 कुछ काम करके मैं यहाँ से यहाँ आया. बाकी सब लोग यहाँ से यहाँ पहुँच गए थे. हाँ, everybody, the whole industry, yeah, of course. मेरे पीछे जो लोग थे, मेरे साथ के लोग सब ऊपर चले गए थे, मैं नीचे रह गया, बिकॉज मैं 4-6 साल गायब था. तो जब आप गायब थे, आपने कुछ फील नहीं किया एज एन एक्टर कि मैं आप कुछ मिस कर रहे हो समथिंग एंड ऑल? I was busy working. Even in working also, maybe you are working as an actor style or something. When you are seeing yourself in the mirror. But when I was busy with that coal industry, I was learning. हाँ. कि नई इंडस्ट्री है, नया बिजनेस है, कैसे करना है. तो एक लर्निंग प्रोसेस जो मेरे अंदर का है ना, वो हमेशा ऑन रहता है. मैं यहाँ पर भी सीख ही रहा हूँ. Yeah, that's good. I will never say कि मुझे पता है, मुझे आता है. Because मुझे पता है, मुझे आता है, मैं बोलूँगा नहीं. समझ रहे हो? Yeah. अगर मैंने बोल दिया कि हाँ मुझे पता है, मुझे आता है, तो आप लोग मुझे बताओगे नहीं. Yeah. और जब तक मुझे कोई बताएगा नहीं, मुझे पता नहीं चलेगा कि इसके अलावा और दूसरी क्या चीज़ होती है. मुझे अगर 10 चीज़ें पता है, तो हो सकता है कि
वो जो आदिल सामने बैठा है उसने मुझे कुछ 11वीं चीज सिखा दी, Yeah. तो मेरी नॉलेज बढ़ती है। But उसके पास 2 ही आइडिया है, yeah. मेरे पास 10 है, Mm-hmm. उसकी 2 सुन के मेरी 1 बढ़ गई। Yeah. So I like to listen, Mm-hmm. and that's why I remember where I stopped and where I start from. That's good. So for me, because I was here and everybody was here, Mm-hmm. तो मैं तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाया, लेकिन कोविड ने सबको यहाँ तक पहुँचा दिया। Okay. So everybody became on one level. Mm-hmm. जितने भी स्टार्टा के लोग थे सब एक लेवल पे हो गए। एक लेवल पे हो गए। तो कोविड में मैंने फिर कैमरा, एडिटिंग, डबिंग, साउंड इंजीनियरिंग, लॉजिक प्रो, acoustics, making music, music creation, Mm-hmm. all this I learned. That's good. मैं बैठ के वीडियोस देखता था Mm-hmm. यूट्यूब पे कि हाउ टू फिर मैं उसको इम्प्लीमेंट करता था। Mm-hmm. मैं तो ये पूरा प्रोसेस मैंने कोविड में किया, कोविड में। सीखा कि ये, बिकॉज मुझे पता था एक बार ये खत्म होगा तो सब अपने अपने पे रहेंगे। वापस, yeah. नहीं, एवरीबडी आज की तारीख में नोबडी इज डिपेंडेंट ऑन एनीबडी, Anybody. एवरीबडी सेल्फ डिपेंडेंट। व्हाई? बिकॉज टेक्नोलॉजी सबके हाथ में है। Mm-hmm. हमारे जमाने में टेक्नोलॉजी नहीं थी ना। Yeah, नहीं थी। बट आपका जमाना अच्छा था एक्चुअली। सारे जमाने अच्छे होते लोग रियल थे, लोग मिलते थे, और अच्छा था, मतलब अभी भी अच्छा ही है, पर लोग तो रियल ऐसे में नहीं कि मिलते तब थे। कमीने लोग नहीं थे, तब भी कमीने लोग थे। तब भी बताओ, थे? नाम बताओ। नाम बता Of course, वो तो इंसान है ना, देखो ह्यूमन बिहेवियर तो हमेशा Yeah. से वैसा ही रहेगा ना। Yeah, ह्यूमन बिहेवियर विल नॉट चेंज। it will not. सो हमारे टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, Mm-hmm. अब है। अब है। तो मुझ में और आज के 12 साल के बच्चे में क्या फर्क है? आई एम 55 टुडे, Yeah. तो मुझ में और एक 12 साल के बच्चे में क्या फर्क है? सिर्फ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का फर्क है। Yeah. एंड आई टेल एवरीबॉडी कि अब जैसे ये बैठा है मेरे सामने या ये यहाँ पे बैठा है, ये लोग मेरे से उम्र में 20 साल छोटे होंगे। दे आर एटलीस्ट 20 years younger than me, correct? 20 years younger than me. What they have, हम में फर्क क्या है? Yeah. या जितने भी लोग देख रहे हैं, Mm-hmm. मेरे पास टाइम नहीं है। आई एम 55. I don't have that much more to live. They have time. They have more lifespan left in them. Mm-hmm. Okay? उनके पास क्या है? उनके पास टेक्नोलॉजी है Yeah. जो चीज़ें फास्ट कर देती है। True. उनके पास क्या नहीं है जो मेरे पास है? वो एक्सपीरियंस। Experience. और एक्सपीरियंस टाइम के साथ आता है, True. जो ऑलरेडी That's true. मैं ऑलरेडी कवर अप कर चुका हूँ। Yeah. ओके, उस रेस में मैं इनसे आगे हूँ, Yeah. True. 30 साल आगे हूँ। Pizza. करेक्ट? अब अगर मैं टेक्नोलॉजी को यूज करना सीख जाऊँ Mm-hmm. तो फिर मैं इनको डेफिनेटली डिफीट कर सकता हूँ। Of course. क्योंकि जब ये कुछ देखते हैं या सोचते हैं तो इनका पहला कि इसको कैसे करेंगे, ए राजू कैसे करेंगे, आदिल क्या होगा, मैं सोच रहा हूँ ना, मुझे बैठे बैठे पता है। मैंने तभी बोल दिया कि आएगा नहीं फ्रेम में, बिकॉज मैंने कैमरा देख लिया, कैमरा कहाँ पे लगा हुआ है। Yeah. दे विल हैव टू थिंक कि विल दैट कम इन द फ्रेम? आई नो इट विल नॉट कम इन द फ्रेम, आई नो वेयर द कैमरा इज पुट। दैट इज माय एक्सपीरियंस। That's a good thing. Yeah. True. I can beat them at that. That's good. Correct? Now, if I learn how to use technology, Mm-hmm. which anyway speeds up everything, then I don't need time. You don't need time. Time तो टेक्नोलॉजी मेकअप कर रहा ना। Mm-hmm. आज हम शूट करके एडिट करते हैं, उसको भी एडिट करने में 1 घंटा लगेगा, मुझे आधा घंटा लगेगा। हाँ. हाँ, बिकॉज मुझे वो इक्विपमेंट यूज करना आता है ना, Yeah. True. जिस पे ये एडिट करेगा। करेगा. Yeah. मशीन तो वही है ना, फोन तो वही है ना, सबके True. हाथ में फोन है। अब दूसरे लोगों से पूछो, बोलेंगे यार ये पता नहीं यार ये कैसे होता है। मुझे पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, और मैं सब चीज सीख रहा हूँ। Mm-hmm. आज मैं एआई सीख रहा हूँ, Okay. आज मैं एआई पे गाने बना रहा हूँ। That's Do you know good. that? गाने बना रहे हो? Yes. And people have approached me. How the hell are you making songs on Seriously? AI? How are you getting them to sing? How are you making the music? How? Tell me. I'll make you hear the song. और जितने भी लोग बैठे हैं, I want आप लोग to. अगर कुर्सी से गिर नहीं गिरा, नाम चेंज कर दो। I want to. Exactly. Because that is the future. Yeah. And if I want to be ahead of the race, ahead of them, then I need to use what they are using to be ahead of me. That is technology. That is technology. True. So that is how my mind is, and that is what I did in COVID. Mm-hmm. I said मैं सीखूंगा।
मैं लर्न करूंगा. Like I'm saying, I learned editing, I learned FCP, I learned Adobe Premiere, I learned making music on Logic Pro. True. I bought the MacBook and I studied everything. देखो पहले हम स्कूल जाके टीचर बताओ ना क्या होता है. What is, why do you send a child to school? You send a child to school to get information. पहले encyclopedias होती थी. Yeah. टीचर के पास information होती थी. टीचर को सब पता है. आजकल टीचर को सिखाना पड़ता है. Because मोबाइल फोन में सारी information है. Yeah, मोबाइल फोन उसमें बहुत सारी मिस इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता है बिकॉज हम सीख चुके हैं. आपको नहीं पता. इन लोगों को नहीं पता. दे विल बिलीव व्हाट इज रिटन बिकॉज दे फील कि ये करेक्ट है. बट मैं या हमसे जो बड़े हैं दे नो कि नहीं ये सच नहीं है, सच ये है. तो फर्क लोगों को नहीं पता. आज की जनरेशन को हमको फर्क पता है. That's good. You know, so I am using that to up my game with the younger generation. That's great. That's why when you met me after so long, the first thing you said, "Are you looking better than before?" Yeah, you're looking better than before. Like your skin glowing and all these things. What is राज क्या है? बता दिया ना. You have to learn from the younger generation, not from the older generation. हाँ. I mean anything about your diet and gym. You're doing something. कुछ भी नहीं. Diet normal आप जो भी है वही खाते हो. हाँ. जो इंसान खाते वही खाता हूँ. इंसान खाते हैं. किसी का दिमाग नहीं खाते. दिल खाता हूँ. दिल खाते हैं. अच्छा, tell me something about your love life. मैरिड अभी क्या लव खत्म. आपने लव मैरिज की थी. लव मैरिज. किड्स है ना. 2 किड्स आई थिंक. 3 है. अच्छा. आप कुछ हॉट सवाल पूछने वाले थे. मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. फैमिली के बारे में क्या पूछ रही हो? हॉट सवाल. I just saw your story with Poonam Pandey. हाँ तो. Yeah, yesterday. So how is she looking now? I want to know about her. Looking lovely as ever. Yeah, she's a very old friend of mine, very good friend of mine. हाँ. काफी टाइम के बाद मिला उससे. But उन्होंने कुछ बोला था कि like she died and all this and after 2 days like she was alive. So it was real or something? No, it was real. That's why she became alive. It was some publicity thing for some. Is it right? कुछ फाउंडेशन के लिए उसने किया. क्यों? उनका पब्लिसिटी कैसे. हम एक इंटरव्यू कर रहे क्यों. Yeah. आप अभी आज के एड्स बनाओगे. आप Yeah. मेरी कुछ बातें निकाल के उसको ट्विस्ट करके प्रेजेंट करोगे. Present क्यों. करेंगे. The whole world is on clickbait. क्योंकि हमें चाहिए publicity. इसने ऐसा बोल दिया. चलो देखते हैं क्या बोला. हाँ. बोला कुछ और. बट आप दिखाओगे कुछ और ना. कुछ और. आजकल दिखावे का जमाना है. दिखाएगा तो मैंने. That's why everybody is so happy on Instagram. Yeah. कट करके बाद कल के बिल कैसे भरेंगे. क्या करेंगे. काम क्या होगा. यही सोचते हैं. So who is your favorite actor? You are also of course actor, but who is your favorite actor from Bollywood actually? See यार मेरा कैसा है. बिकॉज मैं इस इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ. हाँ. तो मेरे लिए कभी ये आउटसाइड नहीं रहा. मेरे लिए सब अपने लोग रहे हैं. एंड आई फील एनीबडी हु सक्सेसफुल इज गुड. एंड बिकॉज दे आर गुड दे आर सक्सेसफुल. They are successful. उनमें कुछ तो बात होगी जो किसी और में नहीं है. इसलिए बहुत सारे एक्टर्स जो अच्छे एक्टर्स नहीं है वो अच्छे एक्टर से ज्यादा सक्सेसफुल है. Yeah, true. बिकॉज इस इंडस्ट्री में इट इज नॉट योर टैलेंट. इट इज योर पर्सोना. इट्स योर पर्सनैलिटी. इट्स योर प्रेजेंटेशन. Presentation. और आजकल तो जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पे यूट्यूबर्स जो हैं दे आर जस्ट इन्फ्लुएंसर्स. ये एक नई इंडस्ट्री खुल गई है. एक नया प्रोफेशनल खुल गया. Yeah. कि व्हाट आर यू डू. आई एम एन इन्फ्लुएंसर. Yeah. What if Pride says? बिकॉज वो एक इंडस्ट्री खुल गई है. Yeah, true. एक प्रोफेशन खुल गया. Cool है. So anybody can make their own things. सीधी सी बात है. अब आपको पता है कि ये तो इंजीनियर है. Yeah. लेकिन अगर आप 50 साल या 100 साल पहले जाओगे तो लोग इंजीनियर नहीं थे ना. True. वो तो जब किसी ने इंजीनियरिंग बनाया, गियर्स बनाया, मैकेनिक्स बनाया, उसकी किताबें लिखना शुरू की, जो तब के जो साइंटिस्ट थे, तो जाके इंजीनियरिंग की कोशिश शुरू हुई ना. कोशिश शुरू हुई तो इंजीनियर्स बनना शुरू हुए. तो इंजीनियरिंग एक प्रोफेशन बन गई तब. 400 साल पहले, 500 साल पहले जब भी. या डॉक्टरी, मेडिसिन. एक थोड़ी ना 1000 साल पहले डॉक्टर घूमते थे. So आप उन लोगों के बारे में like क्या कहना चाहोगे जो एक्चुअली बड़े अच्छे आर्टिस्ट है और उनको काम भी नहीं मिलता. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको काम नहीं मिलता और बहुत अच्छे आर्टिस्ट है वो लोग. सी मैं वही कहूँगा जो मेरे फादर बोलते थे कि ये दुनिया की, हमारी हिंदी सिनेमा की दुनिया की एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे 99.99% किस्मत का काम होता है और जो बाकी 0.01% है उसमें आपका हार्ड वर्क, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका प्रेजेंटेशन और दूर कहीं कोने में आपका टैलेंट. टैलेंट, या ट्रू. टैलेंट से आपको काम नहीं मिलता.
आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है जो आपने मैनिफेस्ट किया और आपको मिल गया? लाइक आपने देखा, लाइक सोचा कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, ये करूंगा मैं, और आपको मिल गया हो? ये एक नया वर्ड है जो हम्म, लोगों ने भी निकाला है। या जैसे काफी चल रहा है वो हाँ, जैसे मैनिफेस्टेशन। नेपोटिज्म एक नया वर्ड आ गया, मैनिफेस्टेशन एक नया वर्ड आ गया है। हम तो एक वर्ड यूज करते थे, घंटा। तो आई थिंक उससे ये घंटा होगा, घंटा नहीं होगा। तो वही पकड़ के चलो। ये मैनिफेस्टेशन फैन कुछ नहीं होता है भाई। काम करो, फोकस रखो। उसको आप जितना भी एक ग्लोरिफाइड वर्ड दे दो, यू नीड टू हैव योर एम। जो मैंने कहा ना कि पहले मेरा एम और मेरा फोकस नहीं था। या जब मैंने शुरू किया था 90s में, अब है, अब है। अब है। और अब वो डिजायर है, अब वो भूख है, अब वो हंगर है, एंड आई एम गोइंग विद दैट जोश नाउ। दैट्स रियली गुड। एंड 2024 आई हैव ओपनड अप माय माइंड इवन मोर। दैट्स गुड। सो बागबान को 21 इयर्स हो गए आज, आपको कैसा फील हो रहा है? Very sorry. खबर रखती हो सारी Of मेरी course. फिल्मों की, कौन से साल में कौन सी पिक्चर होगी। हाँ नहीं, 21 अच्छी फीलिंग है, अच्छे। because it's a film that is a landmark film, या and it's always nice to be a part of a good film, you know। तो वो एक ऐसा सेटअप था, इतने बड़े लोग थे, इतनी बड़ी फिल्म थी, तो उसमें मौका मिला काम करने का, सीखने का इन Yeah. सब से। सो फॉर मी दैट हैज बीन, एंड आई लाइक आई सेड, इट्स बीन 21 इयर्स। यकीन नहीं होता, लेकिन अगर आप, मैं फिर से कहूँगा कि मैथ कभी गलत नहीं होता। अगर मैं कह रहा हूँ मैं अब 55 का हूँ, या तो -21 करो तो मैं कितने साल का था जब मैंने भगवान की। बहुत छोटे थे। मेरा मैथ्स बहुत कच्चा है एक्चुअली। इवन You cannot count it. I can't count. Do 55 minus 21. See, you know how old I was when I did. How old I was. I'm not saying how young I was. Yeah. How old I was when I did Bhagwan. Around 24, 25, 26 something, right? No more than that. You were looking so young and handsome. Yeah. What do you mean were? When you did the bad boy work. What do you mean were? You are still sorry. You are. ये edit नहीं करना। Nasir Walker is still handsome. हाँ, अच्छा आपने पूछा नहीं कि वॉकर क्यों? Yeah, I want to know about why you put Walker. Because मैंने जब काम शुरू किया था मेरा नाम नासिर आता था, हाँ. फिर खान चलते चलते लग गया। तो लाइक आई सेड, अभी 2024 में मेरा दिमाग खुला है। तो when you will ask me, so I said नहीं यार, I think I'll put my name as नासिर वॉकर। तो ये पहला मेरा डिसीजन है। Yeah. बिकॉज नासिर आता था जब मैंने काम शुरू किया था, फिर खान पता नहीं किसने लगाया और वो चलता चला गया। बट अब मैंने डिसाइड किया है कि नहीं, अब ना नासिर होगा, ना नासिर खान होगा, अब नासिर वॉकर होगा। And why your father changed his name that time? I want to know. Because at that time, when he used to do the movies, initially it's all the movie that he got popular with, which is character, it was the role of a drunkard. तो that is time that decided that अगर आपको कोई screen name देना है, it should be something that people relate to it. Yeah. So it was said कि आप जॉनी वॉकर अपना स्क्रीन नेम रख लो, बिकॉज अब स्क्रीन पे आपका नाम आएगा। And his real name is Badruddin Qazi. Yeah. So he felt that Badruddin Qazi does not go with the character that I play. There will be no identification. So he said, so somebody said, Chetan Anand said, Guru Dutt said, why don't you make it Johnny Walker? Yeah. एक वो पर्सनैलिटी के साथ जाता है। जाता है। तो he said okay, so he thought about it कि जॉनी कोई भी बुला लेगा, बच्चा भी बोल सकता है जॉनी, कोई भी बोल बड़ा भी बोल सकता है, सकता है जॉनी, वॉकर मतलब चलने वाला, तो हो सकता है मैं चल पड़ूं। Yeah. So he said ठीक है, आप जॉनी वॉकर नाम रखो। True. That's तब like I'm saying, so there was no numerology, there was no decide किया है कि ऐसा नाम। My father and uncle used to do his mimicry. Yeah. दिनेश शंभू साहब तो बहुत अच्छे हाँ, mimicry करते हैं, दिनेश uncle. बहुत he अच्छी used to do करते हैं, that. तो सबकी मिमिक्री अच्छी करते हैं। हाँ. And my father made your father also. I think 1982 something. I Okay. didn't even born in Halol, Gujarat. Oh, Yeah. and now we are meeting. Yeah. Now we are meeting. It should be. Maybe in future our kids also will meet. Yeah, my kids will be grown up. You need to have kids now. I will get married first, Ah. then I will have kids. I'm still looking for a boy. So please, you can contact podcast, call on this podcast, and ask for what name are you going? Kimi. Just Kimi. Call for Kimi and send your marriage proposals.
एंड या डायरेक्ट आप मुझे भेज सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मेरा ईमेल आईडी आप लिख लीजिए @gmail.com। ये गूगल क्या था? मेरा ईमेल आईडी था। ऐसा कैसा ईमेल आईडी जो सुनाई नहीं दिया ठीक से, दोबारा बोलो। मेरा ईमेल आईडी है @gmail.com। You can call me on 932। So please जितने भी मेरे प्रपोजल्स किमी जी को आप देना चाहते हैं यस, तो मुझे दे दीजिए। दहेज भी मिस्टर नासिर ही देंगे, नासिर और वॉकर जी, दहेज में आऊंगा क्योंकि भी मैं। बहुत रिच है ये, और मैं अंधेरी दहेज में रहते हैं, बंगलों में मैं रहते हैं, दहेज में आऊंगा भी। बेचारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फ्लैट में रहते हैं। देखो मैं दहेज में भी काम करता था, मैं टोल्ड गुजरात दहेज में। हाँ, दहेज में भी। हाँ, मैंने जूनियर यूएस कैसे ना दहेज कोर्ट था वहाँ पे। सो व्हाट्स योर फ्यूचर प्लान? फ्यूचर प्लान तो ये है कि ये पॉडकास्ट खत्म करूं। बट अभी तो आप दुबई में एक प्ले भी कर रहे हो। हाँ, एक में और एक टू। इट्स अ कॉमेडी प्ले, इट्स अ फन प्ले। एंड अभी हम लोग पहली बार दुबई आए। आई एम श्योर वी विल कम बैक अगेन फॉर इट। या प्लीज कम बैक। देयर विल बी अ डिमांड फॉर दिस शो। इट्स अ वेरी नाइस प्ले एंड इट्स अ वेरी गुड स्टार कास्ट। There is Shweta Tiwari, there is Suresh Menon, there is Kishwar Merchant. What are you playing in this? It's a comedy of errors, mistaken identity। इसको लगता है कि ये उसका हस्बैंड है, उसको लगता है कि वो उसका भाई है, वो उसको लगता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। तो उस टाइप का कॉमेडी प्ले है, कॉमेडी ऑफ एरर्स है, मिसकम्युनिकेशन है। एंड लाइक आई सेड, गुड स्टार कास्ट। किशोर मर्चेंट इज देयर, श्वेता गिलाटी, सिद्धार्थ सागर इज अ वेरी वेरी गुड कॉमेडियन। तो मेरे लिए परितोष पेंटर इज अ डायरेक्टर हु इज अ वेरी वेरी ओल्ड फ्रेंड। सो फॉर मी इट इज गुड फन टू वर्क विद श्वेता तिवारी। इट्स गुड फन टू वर्क विद सुरेश मेनन। सुरेश भी मेरा बहुत पुराना बचपन का दोस्त है, सच अ टैलेंटेड मैन, यू नो। तो ऐसे लोगों से आप काम करो तो आपको सीखने को ही मिलता है, यू नो। सिद्धार्थ सागर हु इज न्यू कॉमेडियन, जो कपिल के शो में आता है, जो नसीरुद्दीन शाह इन सबकी नकल करता है। टैलेंटेड पर्सन। There's so much I get to learn from him about कि क्या हो रहा है, what is happening today. So you sit with the younger generation, तो आपको पता चलेगा कि आज की तारीख में क्या हो रहा है, what is happening. वो अपने जोन में रह के फिर आप अपने जोन में रह जाते हैं। बट एक होता है ना टीवी में या शूटिंग की बात अलग है, यानी ये लाइव शोज की बात अलग है। तो how you feel when you are on the stage in lot of crowd and all of that? See, I enjoy it because I've done plays before also. And अभी ये पॉडकास्ट में आपको आधे घंटे में पता चल गया होगा। I like to interact with people. I don't like to speak to objects. समझ में आ गया। Because objects don't react. Yeah, true. So Nasir ji, we will play now one game. Who is Nasir ji? Nasir Walker ji. Who is Nasir Walker ji? Johnny Walker के son and बहुत ही अच्छे एक्टर। हाँ, तो मेरा नाम नासिर है। नासिर है? हाँ, नासिर जी। No Nasir P. Of course you are my friend, but in front of the screen I have to say Nasir only. मेरा नाम थोड़ी था स्टारिंग नासिर जी। Okay. ये सब जी लगा के, ये सब चीजें करके आदमी खुद को ना फिर बूढ़ा समझने लगता है। नहीं, we are giving you respect. No, I don't want respect, I want love. Okay, so Nasir will play one game now. Yes. Okay, I'll give you some three things, like, and you tell me in your acting style how you will tell them and all these things. Okay? Like dumb shit, I'm acting. Yeah. So first thing is, आप कहीं बाहर जा रहे हो और आपको किसी को प्रपोज करना है, आपकी दोस्त को। फ्लर्ट करोगे? तो प्रपोज हो गया ना, इससे ज्यादा और क्या करूं मैं? हो गया ना? और क्या होता है? ये तो होता है। The second thing, आपको कैमरामैन को बोलना है कि भाई कल आना, आज नहीं करूंगा मैं। कहाँ जा रहे हो? चले गए। आपने बोला ना, कर दिया मैंने। इतना ही होता है भाई, निकल लेने का, है क्या नहीं? एंड द थर्ड थिंग कि आपकी बेटे को आपको बोलना है कि आज मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, गुस्से से डांटना है उसको। अच्छा, मेरे बेटे को? हाँ। वो तो मुझे डांटेगा, वो 13 साल का। आजकल के बच्चे बाप के बाप हैं। सीरियसली? हाँ, बस वो तो he'll give you one. 2024 ही है। Today's generation, you can't tell them to shut up. Yeah. It's very, वो नहीं होगा मेरे से, वो उल्टा मुझे डांट लेगा। Okay, I'll give you some 5 names. You have to give me answer like within a second. जो भी आपके दिमाग में पहले आ जाए, ठीक है? शाहरुख खान. शाहरुख is. No, you cannot take this much time immediately. अच्छा, ओके, चलो। क्या होता है ना, जब आप इमीडिएटली पूछोगे ना तो ये बादशाह, किंग, ये निकलेगा।
तो वो तो सब जानते हैं ना, आंसर अच्छा होना चाहिए, जो Yeah. किसी ने अब तक बोला नहीं है. सलमान खान, Salman is big hearted. बिग हार्टेड. आमिर खान, Amar intelligent. तमन्ना भाटिया, She is very attractive. वेरी अट्रैक्टिव. Yeah. राखी सावंत, White. Tamanna Bhatia is white. राखी सावंत, Super. सुपर. डीजे किमी, Ah, very sweet. Karak. करेक्ट, करेक्ट. थैंक यू. हु इज योर फेवरेट डीजे? यार मैं ऐसे उस इंडस्ट्री के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ कि who is the DJs today and but like again I'm saying when we were young DJ Akbar था, या Sami था, या so you know these people were there, Akil was there. या तो बहुत कार हमने ये तो डीजे गिरी कर रहा है, क्या करेगा डीजे गिरी, कुछ बजाता है, इसमें क्या होगा. सो ये तब उन्होंने शुरू किया था, या जो अब like I said होते होते एक प्रोफेशन बन गया. So these are the pioneers, they started this. जब हम छोटे थे हम उनके साथ उठते थे, सब मेरी एज के हैं, हम उम्र के हैं, हम साथ में या पले बड़े हैं बैंड्रा में, all of us. So I know it was difficult for them at that time to do it. Now it's become easy for you people, and you people are making it easier for the younger generation. या Because अब कोई अगर बच्चा अपने माँ बाप को बोलेगा डैड आई वांट टू बिकम अ डीजे, या तो माँ बाप ये नहीं बोलेंगे पढ़ाई कर, ये क्या कर रहा है. बिकॉज दे रियलाइज कि एक प्रोफेशन है, इसमें भी एक इनकम है. इनकम है. या ऑफ कोर्स. काम करना, सेटिस्फैक्शन पाना और उस काम से पैसे कमाना. या दैट्स व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट. थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू सो मच किमी, थैंक यू सो मच. to X Series Real. Thank you Thank so you. much, and Thank see you soon again. Thank you X Series for having me over here, and it was kind of you to call me for this interview, and I hope you guys enjoyed it as much as I did. और अगर मैं कहीं से भी थोड़ा सा नींद में लगाऊं तो आप लोग मुझे थोड़ा सो जाइए. So thank you Nasir. Thank you so much everyone. X Series Real को सब्सक्राइब करना मत भूलना. Thank you everyone.